Hello everyone, this is Harpreet. Today we'll understand an essay written by Orphan Pamuk. What what our minds do when we read novels. हमारा मन क्या करता है जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं? तो कभी आपने नॉवल पढ़ा होगा. You might have read a novel, and at that very time when you are reading about 300 pages, what kind of thought, what kind of things that happens in your mind. So basically this is the idea behind writing this essay by Orphan Pamuk. So here we have some points that can be seen in this essay. This is first point I would like to elaborate is observing and following. जब हमारा मन नॉवल पढ़ रहा होता है तो सबसे पहले एज अ रीडर हम जर्नल सीन को देखते हैं और नैरेटिव यानी कि कहानी को फॉलो करते हैं. और ये जो नॉवल है ये एक्शन पैक्ड थ्रिलर भी हो सकता है और कोई लिटरेरी वर्क भी हो सकता है. और हमारी कोशिश रहती है, हमारे मन की कोशिश रहती है कि हम मीनिंग को ढूंढें और मेन आइडिया को ढूंढें. सो आवर माइंड एट दैट वेरी टाइम व्हाट डज इट डू? इट जस्ट observe the things what is happening in the lives of the characters, and we try to follow the narrative, we try to follow the story, and we just want the very first thing that our mind do or we do, that we just we just try to locate the theme of the novel, or we just try to understand what is going on in the lives of the characters. So this is the very first idea that occurs in our mind while we read novels. Second, हमारा मन शब्दों को images में convert करता है, transforming words into images. Our minds convert words into vivid mental images. These mental pictures complete the novel, allowing our imagination to visualize the story as it unfolds. Here I would like to tell that whenever we read something, whatever we are reading, according to Saussure, who gave the theory of sign, that our mind, when we read something, our mind automatically gives the image to the words. So when we read novels, when we read characters, when we read a scene, when we read the lines of the page of novel, we just transform words into images. We just transform the characterization into the picture that goes on in our mind. So this is the second thing that occurs in our mind when we read novels. Third point, navigating reality and imagination. A third dimension of reality emerges within us, the complex world of the novel. The complex world of the novel. We wonder how much is real experience versus imagination, blurring the boundaries between the two. तो जब कभी भी आप नॉवेल्स पढ़ोगे ना तो क्या रहेगा, एक तो आप इमेजिन भी करोगे साथ साथ में पढ़ते हुए, और साथ साथ में आपको रियलिटी के ऊपर भी रहेगा कि भाई रियल रह रहा है, ये जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, जो भी इनकी लाइफ में जा रहा है, आर दे रियल. तो आप हमेशा नेविगेट करते रहोगे, कभी आप रियलिटी में आ जाओगे, कभी आप इमेजिनेशन में आ जाओगे, क्योंकि जो नॉवल रहता है वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड रहता है.
तो राइटर की इमेजिनेशन भी रहती है। तो आगे राइटर की इमेजिनेशन के बाद रीडर की इमेजिनेशन भी काम करती है जब उस टेक्स्ट को राइटर पढ़ता है। उसके बाद असेसिंग रियलिज्म, वी क्वेश्चन वेदर द नॉवेल्स डिपिक्शन aligns with our understanding of reality. Is this scene plausible? Could it truly happen? तो भाई कुछ आप नॉवेल्स पढ़ोगे, मान लीजिए यू आर रीडिंग अ नॉवल ऑफ मैजिकल रियलिज्म, लाइक यू रीड मिडसमर्स, you read Midnight's Children by Salman Rushdie. One of my friend, he told me that when I started reading that novel, Midnight's Children by Salman Rushdie, I couldn't read the novel 3 or 4 pages because he was not able to understand. And because the novel is based on magical realism, so basically that my friend was looking towards realistic novels, and that boy was not able to understand magical realism. So at that very point he was trying to assess the realism. He just wanted to learn something realistic, though the novel is based on the historical events of independence, but he couldn't get the idea, he couldn't locate the idea. So this is the reason. So जब हम नावल पढ़ते हैं तो हमें रहता है, ये हमारा मन करता है कि यार भी ये सचमुच में ये प्लॉसिबल भी है क्या, ये सचमुच हो भी सकता है ऐसा जो करैक्टर में दिखाया जा रहा है। जैसे इसी तरह से जब हम मूवी कोई देखते हैं, कोई अच्छा एक स्पेक्टेटर है मूवी का, किसी भी तरह की मूवी का, अगर वो मूवी में ज़्यादा ही एग्जेजरेशन दिखाया हुआ है, ऐसी चीज़ें दिखाई हुई हैं जो पॉसिबल ना हो, तो वो उसको देखते देखते उसको छोड़ देगा। बेसिकली बायोपिक्स के ऊपर बड़ा आजकल मूवीज़ बनती हैं और लोग पसंद करते हैं। वो इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे रियलिज़म को असेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से नॉवेल्स में भी रियलिज़म को असेस करते हैं लोग, वो वही नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, हमारा माइंड वही कुछ पढ़ना चाहता है जो सचमुच हो सकता है इस ज़िंदगी में। उसके बाद 5th जो पॉइंट है वो है एप्रिशिएटिंग लिटरेरी एलिमेंट्स। तो भाई अब लिटरेचर है तो लिटरेचर के तो लिटरेरी एलिमेंट तो रहेंगे ना, तो उन एलिमेंट्स में हम एनालॉजीज़ देखते हैं, कंपैरिजंस देखते हैं, और कहानी किस ढंग से लिखी गई है। कोई कहानी किसी कहानी शुरू से शुरू हो रही है, उसकी जन्म किसी करैक्टर के जन्म से शुरू हो रही है या वो मिड में शुरू हो रही है, और क्या क्वालिटी है प्रोज़ की, कितने अच्छे शब्द यूज़ किए गए हैं। ये वैसे ही है जैसे डायलॉग्स अच्छे लिखे होते हैं तो एक मूवी के लिए, उसी तरह से कि कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अच्छा, तो वर्ड्स के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है जब हम किसी नावल को पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान शब्दों के ऊपर भी जाता है कि कितने अच्छे शब्द यूज़ किए गए हैं। उसके बाद है मॉरल जजमेंट्स। तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं मॉरली भी है ना। तो जैसे सिगमंड फ्राइड कहता है कि भाई ईगो, सुपर ईगो और इड में फंसा हुआ है हमारा माइंड। तो सुपर ईगो यानी कि मॉरल जजमेंट्स में भी हमारी जो एवैल्यूएशन वो रहता है। तो मॉरल एवैल्यूएट भी हम करते हैं चीज़ों को कि भाई ये जो ऑथर ने लिखा हुआ है ये मॉरली सही भी है, ये जो करैक्टर का बिहेवियर है ये इथिकल है या अनएथिकल है। तो इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा फोकस रहता है जब हम किसी नावल को पढ़ते हैं। तो मॉरल कंपास भी जो है वो नावल को पढ़ते हुए काम करती नज़र आती है। उसके बाद जब हमें नॉवेल्स समझ आना शुरू हो जाता है तो हम कनेक्टेड फील करते हैं। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इट फील्स एज दो इट वाज रिटन जस्ट फॉर अस, वी एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ सक्सेस एंड कनेक्शन। तो भाई नावल अच्छे लगने के ऊपर बात है कि अगर आप वाकई उसके 300 पेज के नावल में से 50 पेज पढ़ चुके हो तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तभी वो पढ़ पा रहे हो। अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ोगे।
तो जब हम एक नावल को अकॉर्डिंग टू ऑर्फन Pamuk, we just feel connected when we read novel. Our mind feel connected while reading a novel. तो उसके बाद है memory at work. तो हमारी जो याददाश्त है वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ काम करती नज़र आती है. जो कुछ हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं. तो ये भी अब ऐसे है ना कि कोई करेक्टर ऐसा मिल गया, मान लो सपोज अ गर्ल इज़ रीडिंग अ नावल एंड शी इज़ रीडिंग अ नावल अबाउट फेमिनिज्म एंड इन हर ओन लाइफ शी इज़ फीलिंग वेरी मच problematic, and because she is being discriminated in the society. तो अगर वो उसी तरह का कोई नावल पढ़ रही है लड़की, तो उसके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ नावल के साथ जा जुड़ेंगे. तो ये भी एक काम करता है. मेमोरी एट वर्क भी काम करती है जब आप एक नावल पढ़ते हो. और द हंट फॉर द सीक्रेट सेंटर, वी सर्च फॉर द नॉवेल्स हिडन कोर, a meaningful center that draws us in like a hunter seeking signs in a forest. जैसे एक जंगल में एक शिकारी शिकार करते हुए जो साइंस को ढूंढता है, उसी तरह से रीडर भी ढूंढता है कि इसका अंदरूनी क्या मीनिंग है, क्या चीज़ है वो जो राइटर बताना चाहता है. सो ये बेसिकली ये 9 पॉइंट्स हैं जो कि एक नावल को पढ़ते हुए हमारा मन ऐसी कार्रवाई डालता है. तो सो दिस वाज ऑल. सो I personally feel that the elaboration of this essay would definitely help you in understanding. And if you have any kind of query, if you want PDF of these notes, you can contact me, you can email me. Thank you so much.